हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तन्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स इन कनाडा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, उनके लिए दिस चैनल इज़ अबाउट चिल्ड्रंस लाइफ ऑफ न्यूली इमिग्रेंट पेरेंट्स या वो पेरेंट्स जो इमिग्रेट करना चाहते हैं। हमने पिछले वीडियो में और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रैवल एसेंशियल्स फॉर किड्स। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। उसमें हमने डिस्कस किया था क्लोथिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। इस वीडियो में, लाइक आई टोल्ड इन द प्रीवियस वन, वी आर गोना डिस्कस अबाउट टॉयज, books and some medication and a little bit about some things that I feel are important from kitchen perspective for kids. So let's not waste time and let's get started with toys. It depends आपके बच्चे किस एज के हैं, but like when I came, my daughter was just 4 years old, and when I was packing, I was thinking, should I be carrying some toys for her? एकदम जाते ही we may not be able to purchase, and it's important to keep children occupied. I would suggest that if you want and you have space, then you perhaps should carry things and toys and activities which can keep children engaged for a little bit of longer duration, and which maybe you as a family in entirety can engage in. Like for example, you can carry playing cards. It doesn't take too much space in a suitcase. You can carry Ludo, you can carry chess, you can carry these type of games. One thing that I wish I carried, and I eventually bought it here, is some kind of art kit. Maybe you can have some colors like a sketchbook or drawing book, some sort of craft stuff. And इन चीज़ों में ज़्यादा वेट नहीं होता एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. सो यू कैन कैरी दिस. इट कैन ऑल्सो कीप चाइल्ड एंगेज्ड फॉर सम टाइम. अगर आपके छोटे बच्चे हैं, टॉडलर्स जैसा कुछ है, तो उनके लिए भी मैं नहीं रेकमेंड करूँगी बहुत ज़्यादा कुछ लाना टॉयज़ में. बट one thing that I may recommend, and that if your child is already playing with it, is some sort of wooden toys. दो जो इंडिया में ज़्यादा वैरायटी भी मिलती है एंड चीपर भी मिलेंगे यहाँ से. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू. सो फॉर एग्जाम्पल, दीज टाइप ऑफ टॉयज, ये टॉप है या इस तरीके का वुडन विच इज़ स्क्रूइंग एंड स्क्रूइंग बैक टाइप ऑफ टॉयज. सो ये अगर आप यहाँ लेंगे मिल जाएंगे, शायद और अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का मिलेगा, बट फिर बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा. इन टर्म्स ऑफ डॉल्स, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टॉयज एंड ऑल ऑफ दोज, आई थिंक यहाँ पे बहुत मिलते हैं. एंड if you buy them in sale, they'll be decently priced also. So let's come to the next category, which is books. Now this is a very interesting category. And to be honest, let me put a disclaimer. It's to each one its own. वो वाली कहानी है. So I am very particular about books and very keen on books. I myself like to read books, and I like my children to read a lot of books. My daughter loves reading books. So and this actually, books is on a recurrent list always on for me. So whenever I go to India, I have a list of books that I want to buy. Books / notebook / any kind of academic stuff also you want to buy. तो उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एकेडमिक की. सो नाउ सिंस माई चिल्ड्रन आर स्मॉल, आई फील जो इंडिया में मिलते हैं हिंदी और इंग्लिश राइटिंग के लिए, दोज लाइंड notebooks, I really find them useful, क्योंकि my daughter is at that stage wherein she is learning to write. Also when I was coming to Canada and now that I'm here, I know कि वो हिंदी स्कूल में नहीं सीख रही है, and it's important for us कि बच्चे को थोड़ा हिंदी आए, थोड़ा हिंदी पढ़ना आए, थोड़ा हिंदी लिखना आए. तो मैं ज़रूर हिंदी की कुछ टेक्स्ट बुक्स लेके आती हूँ. Another set of reading books that I get is authors which are more specific to India. So for example, I'm a big fan of Sudha Murty, और मुझे उनके बुक्स बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों के लिए. तो मैं इस तरीके की बुक्स लाती हूँ. ये शायद यहाँ मिल जाएंगे. मैंने टू बी ऑनेस्ट एक बार ही चेक किया था अमेज़ॉन पे, बट वो बहुत महंगा था एज़ कम्पेयर टू व्हाट यू वुड गेट इन इंडिया. तो मैं इस तरीके की बुक्स ज़रूर लेके आती हूँ. एक और कैटेगरी ऑफ बुक्स है विच इज़ मोर माइथोलॉजिकल. नाउ
I and my husband, we feel that it's really important for our children to know the culture, to know the background, to know, so much richness about India. So I always get some kind of books that tell them about Indian gods, Indian mythology, and all of that. So this is a book on Ganesha. Yeah, so I get a couple of books on that. वो यहाँ पे rarely मिलेंगी और महंगी मिलेंगी again. तो इस तरीके की चीज़ें ज़रूर मैं लेके आती हूँ. Coming back to the kitchen stuff, to be honest, that's a separate topic altogether, और शायद इतना ज़्यादा बच्चों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा तो रेलेवेंट नहीं है, पर हाँ एक दो चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से. सो आई फील फॉर किड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्मॉलर कैपेसिटी के यूटेंसिल्स लाएं. अगर कोई कढ़ाई ला रहे हैं या पैन ला रहे हैं या कुकर ला रहे हैं, द मोस्ट जो आपका यूज़ होएगा वो 1.5 से 2 लीटर की चीज़ यूज़ होएगी, आई थिंक, एंड आई रियली फाइंड देम यूजफुल. So that's important. In terms of utensils, I think जो चीज़ें मेरे को यूज़फुल लगती हैं वो है इडली स्टैंड, अप्पे पैन. They are really useful because you need to pack quick lunches for your children while you are busy. जो चीज़ फटाफट से बन जाती है, सो अप्पे एंड इडली आर आई थिंक, और सब तरीके के बच्चे खा लेते हैं जनरली, तो वो आप लेके आ सकते हैं. देन वन मोर थिंग आई फील इज़ एक्चुअली जो आपको ज़रूर से लानी चाहिए है वो है स्टील का टिफ़िन बॉक्स. आई थिंक बच्चों के लिए, अब बिकॉज इट इज़ कोल्ड हियर, यू नीड टू इंश्योर दैट व्हेन दे आर गोइंग टू ईट देयर लंच, इट्स अगर बहुत गर्म भी नहीं, थोड़ा तो इट्स नॉट टोटली कोल्ड व्हेन दे आर ईटिंग इट. सो आपको ज़रूर से स्टील का टिफ़िन लाना चाहिए. यहाँ पे समहाउ आई हैव स्ट्रगल टू फाइंड प्रॉपर स्टील टिफ़िन, टू बी ऑनेस्ट. When you're buying it, please make sure with the shop seller that the steel that you're getting is of good quality, and it should be compatible with dishwasher. So वो आप ज़रूर ध्यान रखिए, पर प्लीज़ एक अच्छा स्टील का टिफ़िन अपने बच्चों के लिए इनफैक्ट 2 लेके आइए. समटाइम्स one wash नहीं है, you can always use the other one. So that I think is actually a must for in terms of utensils as far as kids are concerned. Now let's talk about the elephant in the room, which is medication. So disclaimer, I'm not a doctor, but actually to be honest pretty much हम बन गए हैं being parents of 2 children, and बच्चे बीमार पड़ते ही रहते हैं. बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा कनाडा का सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो हाउ इट इज़ इन इंडिया, लाइक आपका बच्चा बीमार पड़ा है इंडिया में, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मेडिसिन देगा, आप दुकान पे जाते हैं और वो मेडिसिन खरीदते हैं तुरंत. ओके, ऑलमोस्ट. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या है कि कुछ मेडिसिन होते हैं जो आपको ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, पर मेजॉरिटी मेडिसिन जो होते हैं वो आपको प्रिस्क्रिप्शन से मिलते हैं. अब प्रिस्क्रिप्शन से मिलते हैं उसका मतलब ये कि आपको डॉक्टर के पास जाना और दिखाना बहुत ज़रूरी है. बिना डॉक्टर जब तक वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा आप वो मेडिसिन नहीं खरीद सकते हैं. और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे वैसी नहीं है जैसे इंडिया में होती है, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट है ये सिस्टम, यहाँ पे सारा पब्लिकली फंडेड है. तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको यू शुड हैव, एंड विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल इन सम अदर वीडियो. सो यू फर्स्ट नीड टू हैव अ फैमिली डॉक्टर, एंड देन यू अब हो क्या रहा है कि इतना इजीली अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है. एकदम ऐसे नहीं है आपने कांटेक्ट किया एंड यू विल गेट एन अपॉइंटमेंट स्ट्रेट अवे. सो द अपॉइंटमेंट माइट बी 4 days later, 5 days later, और इवन मोर देन दैट. तो लेट्स से आपका बच्चा बीमार है आज, आपको अपॉइंटमेंट मिला है 5 दिन बाद का, डॉक्टर देख नहीं सकता, प्रिस्क्राइब कर नहीं सकता, तो आपको दवाई मिलेगी नहीं. नाउ व्हाट टू डू, यू कांट कीप वेटिंग फॉर 5 days, राइट. Another option is that यहाँ पे जो बोलते हैं that if the child is really sick, you go to the hospital and you go to the emergency department of the hospital, which you can do. But to be honest, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं वो रूट इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि I know like I have just like a 1-year-old who I cannot take to hospitals, right? Even if I have to go take my elder one to the hospital. इसलिए I've realized that it's better to have some medicines with you all the time.
सो दैट थोड़ा बहुत जो आप बोलेंगे फर्स्ट एड या उस तरीके का जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इमीडिएट आप अपने घर में दे दें. इवन दो आई वॉन्ट टू से दैट प्लीज डू नॉट गिव एनी सीरियस मेडिकेशन विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन, बट थिंग्स लाइक नॉर्मल पैरासीटामोल या नॉर्मल कफ सिरप या इस तरीके की दवाइयाँ आपके पास हमेशा होनी चाहिए. एक और बात मैं बताती हूँ, यहाँ पे अभी पीछे क्या हो रहा था कि बेसिक मेडिसिन भी जो ओवर द काउंटर मिलती हैं उनकी भी शॉर्टेज चल रही थी. सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जो पैरासीटामोल मिलता है बच्चों का, उसको टाइलेनॉल बोलते हैं, और वो शॉर्ट सप्लाई में था फॉर गुड 2-3 months एंड यू कुड नॉट फाइंड देम लाइक इवन इफ इट इज ओवर द काउंटर मेडिसिन. यू नो, इस तरीके के थोड़े से शॉर्टेजेस यहाँ चल रहे थे अभी. आई थिंक नाउ दे आर सॉर्टेड, बट in any case, you know, you must have a first line of immediate I would say treatment available to you if such a situation arises. आप उसमें नॉर्मल पैरासीटामोल ज़रूर कैरी कीजिए, क्रोसिन वगैरह, कफ सिरप कैरी कीजिए, एनी टाइप ऑफ एंटी एलर्जिक, जो बच्चा अगर वो एलर्जिक है पर्टिकुलरली तो, और आपको पता है तो उस तरीके की मेडिसिन कैरी कीजिए. आई वुड से one ointment on antiseptic, which is like I think soframycin or something, one ointment on a pain reliever like a Move or something. अगर बच्चे को आपकी मोशन सिकनेस है तो उस तरीके का, सो बेसिकली इस तरीके की मेडिसिन जो डे टू डे में काम आते हैं, पर आपको लगेगा कि शायद वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्लीज़ लेके आइए, क्योंकि ओवर द काउंटर मिल भी जाएंगे तो यू नो प्राइसेस में बहुत फ़र्क है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अभी पीछे मेरी डॉटर बीमार थी एंड आई थॉट यू नो उसका नोज़ का ब्लॉकेज है. हाँ, सो ये मैं विक्स का इन्हेलर लेके आए एंड इतनी सी चीज़ में बहुत ज़्यादा देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द कॉस्ट. What you would buy in India and what you would buy here. So my point is that you know such small things which we may think कि you know इतना important नहीं है, but actually come it proves out to be really important in such scenarios, and price में बहुत difference होता है. तो इस तरीके की चीज़ें आप ज़रूर लाइए. आई वुड से कि अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं और आपके पास टाइम है अभी आने के लिए कनाडा, आप प्लीज़ एक होम्योपैथी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और वो जो दवाई लिखे वो लेके आए. अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें कवर कर लेती हूँ, इट्स नॉट मेडिसिन रियली बट ओवरऑल हेल्थ. अगर किसी भी तरीके का चेकअप है आपका या आपसे आपके बच्चे का रिलेटेड, प्लीज़ वहाँ करा के आइए, बिकॉज यू नो हेल्थ चेकअप में भी यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि जब तक कि आपका फैमिली डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, यू कैन नॉट गेट सम टेस्ट डन, एनी टेस्ट डन फॉर दैट मैटर. तो ऐसा नहीं कि आप बस जाएंगे इंडिया की तरह और लाल पैथ को बोलेंगे कि कैन आई गेट दिस टेस्ट डन एंड वो कर देगा. ऐसे नहीं होता है यहाँ पे. तो अनलेस डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स इट आप नहीं करा सकते. तो किसी भी तरीके का चेकअप है आप प्लीज़ इंडिया में करा के आइए, फुल बॉडी चेकअप या बच्चों का डेंटल चेकअप या वट एवर इज़ रेलिवेंट फॉर योर चाइल्ड, वो सब करा के आइए आप, ताकि यू नो एकदम यहाँ आके भागना ना पड़े. या दैट्स प्रीटी मच इट. अगर लाइक आई ऑलवेज से, अगर कुछ मिस हो गया तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन so that we can include it in some video or the other. Oh yeah, and I realized from my last video that I had promised I will put up my list of essentials and recurrent items. So please find that attached in the description box below in today's video. Thank you. Love you. Bye.